इंडिया वोट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता कृष्णन। आयकर विभाग और चुनाव आयोग तमिलनाडु भर में छापेमारी कर रहे हैं। एक ही रात में दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। एक डीएमके सेक्रेटरी गीता जीवन के घर तूतुकुड़ी में, जहां डीएमके लीडर कनिमोड़ी रह रही थी, और दूसरा आंदीपट्टी के तेनी डिस्ट्रिक्ट में। आपको बता दें कि ट्यूटिकोरिन में जो रेड्स हुए थे उसमें कनिमोड़ी ने राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। कनिमोड़ी के घर पर भी छापेमारी की गई थी, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला। कनिमोड़ी ने बीजेपी की निंदा करते हुए कहा कि ये छापेमारी एंटी डेमोक्रेटिक और डेलिब्रेटली प्लान की गई है। और वो ரெண்டு முறை அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய தோட்டத்துக்கு வந்து இதே மாதிரி ரேட் போயிருக்காங்க. எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வந்து சோதனை செய்து விட்டு இவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் வந்து வேலூரிலே தேர்தலை நியாயமற்ற முறையிலே நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். இதே மாதிரி இதை ஒரு காரணமாக வைத்துக்கொண்டு தோல்வி பயத்தால் இங்கேயும் தேர்தலை நிறுத்திவிடலாமா என்ற ஒரு நப்பாசையில வந்து இதை செஞ்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். जहां एक और आंडीपट्टी में टूटिकोरिन के रेड्स में कुछ भी नहीं मिला, वहीं एएमएम के फंक्शनरी के जो ऑफिस है वहां पर कैश से भरे 94 पैकेट जब्त किए गए। इन पैकेट में से 1.48 करोड़ रुपए यानी करीबन 1.5 करोड़ रुपए के बेहिसाब नकदी जो है बरामद हुई है। उन पैकेट्स पर वार्ड नंबर, मतदाताओं की नंबर और उन पर 300 रुपए प्रति मतदाता लिखा हुआ था। ये सभी जो है वार्ड आंडीपट्टी असेंबली में आते हैं। यहाँ कल जो है उपचुनाव होने हैं। 150 एएमएम के काडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये सभी रेड के दौरान सरकारी अफसरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு ஓடுறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணாங்க. அண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபிஷியல்ஸும் கொஞ்சம் தள்ளுமுள்ளு அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அவங்க முயற்சி பண்ணாங்க. ஸோ இதன் அடிப்படையில் வந்து கேஷ் எதுவும் வந்து போயிடக்கூடாது. அண்ட் தற்காப்புக்காக வந்து ஃபயரிங் ஆர்டர், அதாவது வானத்தை பார்த்து சொல்கிற மாதிரி ஓப்பன் ஏரில் வந்து 4 ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வந்து போலீஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो पैनलिस्ट जुड़ेंगे। राजेश सुंदरम जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और विपुल मुदगल जो कि डायरेक्टर है कॉमन कॉज और एडीआर के ट्रस्टी है। लेकिन पहले चलेंगे हमारे सहयोगी प्रमोद माधव के पास, जो कि चेन्नई में है इस वक्त। प्रमोद, इफ यू कुड टेक अस थ्रू व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। वी आर हियरिंग रिपोर्ट्स आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ रेड्स बीइंग कंडक्टेड across several locations in Tamil Nadu. We know that Tamil Nadu goes to vote tomorrow. If you could tell us what exactly is happening over there. Well, we did put forward this question to the Chief Election Officer itself. Satyaprabha Sadhu mentioned that like roughly the amount of money and precious metals, that is gold, silver and other ornaments that have been collected for this election alone by the flying squad is coming up to nearly 500 crores. That is a stature in the state of Tamil Nadu. And the issue here is that like the amount of money that has been caught in Vellore, he itself agrees that in the state of Tamil Nadu, the issue is not about muscle power, it's not about booth capturing, but cash for votes. That's the biggest issue. We did put a straight question to him also to ask whether with all this manpower, with all this flying squads and SSTs and IT, was the state election commission able to curb cash for votes. He said that we have put a strong arm around it. We have tried our best to control it. But even after that, this seems to be only the tip of the iceberg, because imagine just in one location they're able to collect 1.45 crores in cash, that to like crisp notes that actually like given like this amount of money should go to this ward. In fact, I could give you the denomination also. One packet carried the number 146 into 300. 300 being the amount of money should be given to one voter. That's the way it's been done. This is at Andipatti, and the case was completely wrong in Vellore, where it went all the way to 11.4 crores for the day alone. The IT raids have been conducted in 3 areas, of which money was also retrieved from 2 areas. One is at Madurai and the other one is at Andipatti. In fact, the opposition party leader of Puducherry Union Territory, N. Rangasamy House, is also being currently raided, but so far they haven't received anything over there. Such is a sorry state of affairs in the state of Tamil Nadu with the elections.
definitely money is playing a very, very huge role that should not be allowed anyway. राइट प्रमोद स्टे विद अस। यहाँ पर प्रमोद जैसे बता रहे तो बड़ी चीजें सामने आ रही है। एक तो ये कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक प्लान्ड सिस्टम है जो तमिलनाडु में काम कर रहा है और इसी एक प्लान के हिसाब से जो है यहाँ पैसे बांटे जा रहे हैं इलेक्शन के पहले। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर कि जो भी रेड्स हुए थे, जितने भी रेड्स हुए थे इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ये सारे रेड्स हुए। In fact, Pramod, the timing of the raid have also come into question. They've been questioned by all the parties who are at the receiving ends or end of the raid. Could you take us through what they had to say, and also, you know, what does the EC have to say about that particular question that is being raised? Certainly, the two important raids that raised a lot of eyebrows was one at Vellore, where they recovered 11.45 crores from a person called Punjole Srinivasan's cement godown, where it was like 11.548 crores, and he had affiliation to the DMK's the treasurer, and that's the reason that election has been rescinded itself. But however, yesterday Election Commission also raid was conducted by the IT department at Kanimori's house. Kanimori being a strong contender for Tuticorin, there the raid was conducted, and we asked some details about it with the Chief Election Officer. He went ahead and said that the collector received a message that they took as a tip. The collector of Tuticorin received the message, and that's the reason SST and FST teams went to the place, and IT team later entered the place around 8 p.m. and from then onwards they conducted a search for almost 2 hours and nothing occurred. This turned into an entirely different political weapon, because the brother and sister, Stalin and Kanimori, immediately started saying that how come only IT is conducting raids, Election Commission flying squad, IT are conducting raids only at the opposition party leaders or their alliance parties and not in this ruling party or their alliances. In fact, MK Stalin went forward a bit and he questioned, like, if you're actually acting on even small tips, I'm immediately giving you a tip that there are crores and crores of rupees at Tamilisai Soundarajan's house. Will you conduct a raid at their home? We did put forward this question to the Chief Election Officer also. He gave this kind of like a alleged tip, a challenge to the Election Commission yesterday night around 9:30 p.m. We put forward the question around 2 p.m. to the Chief Election Officer. Even for that, he only could give an answer that we have notified the District Election Officer, nothing as such. There is a delay. When someone else gets a tip, immediately a team goes there. But when MK Stalin has given a tip, they are not apparently even able to provide an answer. So that kind of delay is still present. Only a proper explanation can be given from the bureaucratic end. But definitely money is playing a large role. And as you exactly mentioned, it seems like only at the end period, the last 2 days, money is being distributed. In fact, I have to also tell you what occurred today morning and yesterday morning at Vellore. This is the constituency where AIDMK's alliance party member AC Shanmugam is also contesting, and a former MLA from AIDMK is keeping group of members from PMK, DMDK, or alliance party members, and he's instructing them how to give money, how much money should be given per vote, where you should keep the money, and you should also how about keeping an informer when the police arrives. This video has also been forwarded to the election officer. He said he did not see the video earlier, so we have also given the video to him, and we are waiting for responses on these matters as well. But definitely, cash for votes is the biggest problem Tamil Nadu is facing. Right. Pramod, stay with us. There's a big story that's breaking at the moment. I know you've been following this. इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने वेलोर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव रद्द करने का चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन किया है। बड़े पैमाने पर यहां वोटर्स को पैसे बांटने की घटना के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला किया था। सो प्रमोद, द मद्रास हाई कोर्ट हैज डिसमिस्ड द प्ली and has in fact upheld the election commission and the president's decision to countermand elections in Vellore. Certainly, what has happened is that AC Shanmugam, like I mentioned earlier, he is also an alliance party candidate for AIDMK. He's from the party called as Pudhiya Needhi Katchi, and he was a strong contender against DMK treasurer Kadir Anand's son. Kadir Anand, his name is. But what happened is that it was the chief minister earlier who mentioned that just because money was recovered from a certain area, it is unfair to disqualify all the candidates from the constituency, and what could be done is that simply disqualify Kadir Anand. But however, AC Shanmugam in his petition, directly he did not mention it, but he only mentioned that such and such cash was recovered from such area which belongs to an allegation he brought forward that it is related to DMK, and because of that, it's not fair to completely cancel the election. Appropriate decision should be taken. Yet the Election Commission come forward
forward on its affidavit. It was already released in the Gazette, a 26-page paper that was once again given over there about how Poonjole Srinivasan confessed that this money belonged to only providing to the voters, and the voters could already been influenced because third and fourth stage of providing money has already occurred, and that's the reason Election Commission had gone forward and rescinded it and decided to rescind the election, based on which the Madras High Court also upheld the decision. Right, Pramod, thank you for getting us all of those details. Pramod Madhav वहाँ पर चेन्नई से हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि जो चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वेल्लोर में इलेक्शन रद्द करने का, वो फैसला को यहाँ पर अपहोल्ड किया है, उसे सलामत रखा है। चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। राजेश सुंदरम वरिष्ठ पत्रकार है, विपुल मुद्गल कॉमन कॉज के डायरेक्टर है, एडीआर के ट्रस्टी है। विपुल मुद्गल, शुरुआत आपसे करूँगी। यहाँ पर सीधे तौर पर जो है जो नेता रेड्स के दायरे में आए हैं, जैसे कनिमोड़ी हुई या डीएमके के जो प्रमुख है स्टालिन, सारे नेता जो है अब ये रेड्स को क्वेश्चन कर रहे, टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे, इलेक्शन कमीशन के इंटेग्रिटी पर यहाँ सवाल उठाए जा रहे। मेरे ख्याल इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पे सवाल उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कई तरह से काम करता है। इलेक्शन कमीशन कभी टिप्स के आधार पे काम करता है कि उनको जो सूचनाएं मिलती हैं, जो खबर दी जाती हैं, उसके आधार पे काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हाँ, द पीपल हु आर रेजिंग दिस हैव अ पॉइंट। They have a point, because if continuously the raids are being conducted in one particular set of people, एक ही तरह की पार्टी, अपोजिशन या गठबंधन या वो, अगर उनके ऊपर ही इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और अगर उन्हीं के ऊपर इलेक्शन कमीशन के भी रेड हो रही है, तो ये सवाल तो उठेंगे। मेरे ख्याल सवाल उठाने का उनको हक है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इससे बाहर रखा जाए। देखिए, मैं एक चीज बड़े ध्यान से देख रहा था मैं कि पिछली बार भी जो साउथ के बड़े अखबार हैं, वीक जैसी मैगजीन्स हैं, वो जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसमें पिछली बार जो पैसा पकड़ा गया था, जो 2016 में इलेक्शन के टाइम में, वो प्रति कैंडिडेट 250 रुपया था। अब इस बार जो पकड़ा गया है वो 300 रुपया। मुझे लगता है 50 रुपए का रेट बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन है। देखिए, इस इलेक्शन में 39 सीट्स जो उत्तर प्रदेश में जो घमासान होने वाला है, उसको अगर कोई बराबर कर सकता है तो तमिलनाडु है। 39 सीट्स, और उधर सरकार जो है उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। 18 असेंबली सीट्स के ऊपर भी इलेक्शन हो रहा है। तो ये बड़ा भारी क्रूशियल इलेक्शन है, और तमिलनाडु ने पैसे को एक तरह से स्टेट ऑफ आर्ट बना रखा है। वहाँ जिस तरह से पैसा, मिल्क के दूध के साथ पैसा, अखबार के साथ पैसा, स्लिप्स में डाल के पैसा, नाम लिख के बाकायदा स्लिप, वोटर स्लिप डाल के उसके साथ में पैसा दिया जाता है। कभी कभी पैसा ट्रांसपोर्ट करना इतना मुश्किल होता है। आप सोचिए कि जहां 200 से ज्यादा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सेगमेंट्स हैं, वहां पे कहीं फ्यूनरल वैन्स में जा रहा है, कहीं एटीएम की मशीनों के को जो पैसा सप्लाई करते हैं उनके साथ जा रहा है, कहीं पे एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है। भगवान जाने किस तरह के कितने तरीके इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि पैसा जो है वो तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण चीज बनता जा रहा है, जो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। जी, राजेश सुंदरम, क्या आप भी इससे सहमत है कि यहाँ पर मनी पावर जो है वो पूरे तरीके से इलेक्शंस को डिटरमाइन कर सकता है यहाँ तमिलनाडु में? एक तो ये, और दूसरा जो नेता आरोप लगा रहे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया जा रहा है, रेड्स के टाइमिंग पर जो सवाल उठाया जा रहा है, उस पर आपके क्या विचार है? जी हाँ, अगर आप देखें तमिलनाडु में पिछले कई दशकों से ये हो रहा है। जो दो द्रविडियन पार्टीज हैं, उनका एक बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट होता है, और उसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर अगली जो सरकार बनती है उसमें अगर वो शामिल होते हैं, मलाईदार मिनिस्ट्रीज मिलती हैं, तो उनको फ़ायदा बहुत होता है। इसलिए बहुत सारा एक जो निवेश है एक तरह से वो चुनावों पे करते हैं। अगर आप देखें पिछला जो चुनाव हुआ था आरके नगर में, उसको 2-3 बार काउंटरमांड करना पड़ा, क्योंकि उसमें कई लोगों के ऊपर आरोप था कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ब्राइब करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार तो ये था हजारों रुपए एक एक वोटर को दिया जा रहा था। और बहुत ही एक इंजीनियस तरीका अगर आप देखें तमिलनाडु में एक हिस्ट्री रही है कि जो पार्टीज हैं वो एक वॉर चेस्ट बना लेती हैं हजारों करोड़ों रुपए का, और उसका वितरण कैसे हो उसके बारे में वो लोग अलग से नीतियां बनाते हैं। जैसे आजकल मैं सुन रहा हूं कि जो नए ये जो फूड डिलीवरी एप्स हैं
उनके जो डिलीवरी बॉयज है उनके थ्रू भी जा रहा है। कभी कभी ये होता है कि सारे जो वोटरों को एक पर्ची पकड़ाई जाती है और कहा जाता है कि अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है पहले आपको थोड़ा एडवांस देते हैं, और कैंडिडेट जीत गया तो फला दुकान में चले जाइए, वहां से आपको और कैश मिलेगा। तो इस तरह जो प्रभावित करने का वोटर को एक रहा है पिछले कई सालों से, और वही इस बार भी हो रहा है। जो खास तौर पे, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्यादा करप्ट है वो कर रही है, लगभग सभी के सभी इस हमाम में एक ही तरह हैं। और लेकिन जो आपने रेड्स की बात करी, खास तौर पे जो आईटी की रेड्स हो रही हैं वो स्पेसिफिकली ऑपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट हो रही हैं। अगर इसमें आप एक ध्यान से बात करें कि जो बीजेपी जब ईपीएस ओपीएस की जो पार्टी जो एडीएम के उनके साथ जब अलायंस में नहीं थी, तब उनके चुनावों से पहले, जैसे आरके नगर में जब पहले चुनाव था, विजय भास्कर जो मिनिस्टर्स थे उनके यहाँ भी रेड्स होते थे। आज वही लोग जो पहले ये समझा जाता था कि बहुत मनी बैग्स हैं और पैसे लगाते हैं इलेक्शंस में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन जो डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो मनी बैग्स हैं, उनके ऊपर लगातार हो रहा है रेड्स। और इलेक्शन कमीशन को भी अगर आप देखें तो उनका जो कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद ही जो एक्शन है थोड़ा शुरू होता है, तो उनके ऊपर जो स्टालिन और बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ हद तक एक कुछ जस्टिफिकेशन उसके अंदर है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस वक्त बिल्कुल निष्पक्ष रहे, खास तौर पे, और जो दूसरी एजेंसियां गवर्नमेंट की उनको भी निष्पक्ष रहना चाहिए। राजेश सुंदरम, ये सवाल मैंने तो टिप ऑफ के बेसिस पे सभी के ऊपर करना चाहिए। सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु से नहीं, ये जो आरोप है जगह जगह से आ रही है। चंद्रबाबू नायडू भी कुछ ऐसा ही आरोप चंद्रबाबू नायडू ने भी लगाया था। जी हाँ, अगर कर्नाटक में देखें, बाकी हर जगह से यही खबरें आ रही हैं। जो भी एक फोकस है इनकम टैक्स का, बाकी एजेंसीज का, जो कैश पकड़ा जा रहा है या जो रेड्स हो रही हैं, और एक बहुत ही फिनोमिनल नंबर्स भी मीडिया को दिए जा रहे हैं। ये भी हमको बात सोचनी पड़ेगी कि जब ये नंबर्स आप देते हैं आईटी खास तौर पर कि हमने इतना पैसा लिया है, अब उसको रिकनसाइल होकर कितना अमाउंट रहता है वो अलग बात है, लेकिन जब मीडिया में ये बात आ जाती है तो आप दो तरह के इसमें काम होता है इसमें। एक तो जो आपका राइवल है उसको आप पैसे उसके पकड़ लेते हो, और दूसरा उसको डिस्क्रेडिट भी कर देते हो कि ये पैसे लुटा रहा था। अगर ये एक निष्पक्ष तरीके से हो तो बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, लेकिन एक पक्षपातपूर्ण तरीके से अगर ये होता है तो ये एक पार्टी विशेष को हेल्प करता है। और जो आरोप आ रहे हैं, अगर आप ये देखें कि जो रेड्स किन पार्टीज के ऊपर पड़ रही हैं, किन लोगों के ऊपर पड़ रही हैं, वो एक तरह से लगभग 100% ही ऑपोजिशन पार्टीज के ऊपर हैं। तो निष्पक्षता या पक्षपात का आरोप जो लग रहा है उसमें कुछ तो वजन है, और ये भी इलेक्शन कमीशन को जानना पड़ेगा। और जहां पर भी जो एक्शन हुआ है, आप देखें जैसे वेल्लोर है या बाकी जगह पे, ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज में। यहां तक सुन रहा हूं कि चेन्नई जैसे शहर तक में भी जो पैसे हैं बांटे जा रहे हैं, और इंजीनियर्स तरीके यूज किए जा रहे हैं उनको बांटने के लिए। जी विपुल मुदगल, जैसे आपने खुद कहा कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, राजेश भी वही कह रहे थे कि कई तरीके अपनाए जा रहे हैं पैसे बांटने के लिए, और तमिलनाडु में ये हिस्ट्री रहा है कि इलेक्शन के पहले कैश बांटा जाता है। ये हर कोई जानता है, इलेक्शन कमीशन भी ये बात से वाकिफ है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसे मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन अंडर प्रिपेयर्ड था, यहाँ पर ठीक से तैयारी नहीं की थी उन्होंने? नहीं, इलेक्शन देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन की तैयारी काफ़ी ठीक रहती है। जनरली उनकी बहुत अच्छी मशीनरी होती है। और ये बात भी सच है कि इलेक्शन कमीशन टिप्स पे काम करता है। उनको जो सूचनाएं मिलती हैं, उनको अगर ठोस कोई सूचना मिलती है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। तो अगर ये हो सकता है, मान लीजिए कोई अगर ऑफिशियल एजेंसीज को मिसयूज कर रहा है, गुप्तचर संस्थाएं होती हैं, पुलिस होती है, सीआईडी होती है, और तमाम दूसरी तरह की संस्थाएं होती हैं, जो अगर उनका कोई गलत इस्तेमाल करना चाहे तो वो उनका इस्तेमाल करके वो सूचनाएं जमा करके अपने विपक्षियों के प्रति और वो इलेक्शन कमीशन को सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैंने सुना था कि एक स्टालिन का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था हमसे कोई मांगे तो हम भी टिप्स देने को तैयार हैं। तो उसमें उनको मांगने की जरूरत नहीं है, वो जाएं खुद इलेक्शन कमीशन को बताएं। तो ये बात सच है कि ये जो सेलेक्टिव अगर लगातार आएगा तो उससे इलेक्शन कमीशन की जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे बिल्कुल इसमें आश्चर्य नहीं है कि पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, खुलेआम इस्तेमाल कर रही हैं, अपने अपोजिशन को पीटने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि इलेक्शन में अब ये नई परिपाटी भारत में बनती जा रही है कि हर हालत में
और हर कीमत पे इलेक्शन जीतना है। और जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, देखिए जो इससे लड़ने के जो तरीके भी थे वो भी जो इस्तेमाल किए गए वो बहुत खराब थे। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लेके आए थे ये सोच के कि इलेक्टोरल बॉन्ड से थोड़ी पारदर्शिता बढ़ेगी, वो उसका उल्टा हो गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड भी इस तरह से हो गए कि उसका जो रूलिंग पार्टी है वो इस्तेमाल अपने फेवर में कर सकती है और अपने अपोजिशन को ब्राउबीट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको उनके बीच में घबराहट पैदा करने के लिए कर सकती है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें कोई बहुत रेडिकल तरीका जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हों, सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हों, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मेरे ख्याल जो जैसे बुद्धिजीवी वगैरह है जो इस पे काम करते हैं, वो सब लोग सोचें और उसके बाद कोई ऐसा तरीका बनाए। नहीं तो यही चलता रहेगा, जब आप विपक्ष में होंगे तो एक तरह की बात कहेंगे, सत्ता पक्ष में होंगे तो दूसरी तरह की बात कहेंगे। जी, विपक्ष में एक तरीके की बात, सत्ता पक्ष में एक तरह की बात। लेकिन जैसे विपुल मुद्गल कह रहे थे कि ये बहुत ही अहम लड़ाई है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की जो लड़ाई है वहां पर जो जीत कर आता है, यूपी में अगर कुछ नुकसान होता भी है तो उसकी भरपाई तमिलनाडु के सीट से हो सकती है। इसीलिए शायद जो है सारी ही पार्टियां, भले वो ऑपोजिशन में हो, भले वो सत्ता पक्ष में हो, सारी पार्टियां यहाँ जमकर जो है लड़ाई कर रही है और उसमें जमकर कैश की बरसात हो रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे और बड़ी खबरों के साथ।